देखिए, पहली बात तो यह है कि अपने सब कॉमरेडों को सुना आपने, हालात आपको पता है क्या हो रहा है देश में। मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूं आपके सामने कि देश का भविष्य क्या होगा वो देश का नौजवान तय करेगा, और नौजवान तय करेगा का मतलब है बिना DYFI के देश का नौजवान का कोई ताकत और शक्ति नहीं है। और DYFI की जिम्मेदारी है कि तय करना हमारा देश का भविष्य क्या होगा, क्योंकि उस भविष्य पे निर्भर करेगा नौजवान का भविष्य क्या होगा। यानी देश का भविष्य और नौजवान का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, ये देश आपका है, आपकी जिम्मेदारी है किस तरीके की भारत इंडिया चाहिए हमें। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू डिसाइड व्हाट सॉर्ट ऑफ एन इंडिया वी वांट। You are the future of India. Future India is your own future. So how this India will be, that you have to define, and in defining that India, you have to create that India. And in creating that India, many years ago, many decades ago, we gave the slogan jobs for all, education for all. अभी सुना आपने, सबको शिक्षा सबको काम। नारा वहां बंद नहीं होता। मोदी सरकार को आपको कहना है सबको शिक्षा सबको काम, वरना करेंगे नींद हराम। मोदी सरकार की नींद हराम करनी है, और वो करने की ताकत सिर्फ नौजवानों के हाथ में। और आप ये नारा के आधार पर आपको आज एक नया भारत की निर्माण करने की जरूरत है। और ये क्या हो रहा है, लूट जिस तरीके से मची हुई है देश के अंदर, झूठ और फरेब के आधार पर प्रचार करते हुए, this propaganda and spin and based on untruths. Yesterday the Prime Minister was giving a bhashan saying that we are showing the way to the world and elimination of poverty in India. A complete hoax that he is playing, and when all of us know that 2/3 of the global poor that have grown during the last 2 years, 2/3 of them come from India. Poverty levels have gone up, hunger levels have gone up, unemployment, of course, is soaring. So in this situation, it is not a question of changing the policies. This government will not change the policies. The loot of India's public sector is the property of the people of India. लोग हैं मालिक हमारे देश की पब्लिक सेक्टर की, और बिना मालिक की अनुमति के कोई भी सरकार उसको बेच नहीं सकती। सरकार है मैनेजर, सरकार आते रहेगी जाते रहेगी, संपत्ति का मालिक हम हैं, आप हैं। बिना हमसे पूछे कोई मैनेजर अगर इस संपत्ति को बेचता है, लूटता है, तो इस मैनेजर को उखाड़ फेंकना है और इसको हटाना है, तभी हमारे देश को हम बचा पाएंगे। So it's no longer a question of pressurizing this government to change policy. The point is, this government, we have seen through these last 8 years, is bent upon looting India, is bent upon creating two Indias, one for the rich and one for the poor, and is bent upon ruining the lives and future of our youth. Now this cannot be allowed. If this cannot be allowed, then this government must go, otherwise India cannot be saved, and unless you save India, we cannot change India for the better in the future. And that is why today it is essential that the Indian youth stand up and fight for their rights. और इसलिए आज ये अनिवार्य है कि आपको खड़े होकर लड़ना पड़ेगा कि विकल्प है, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव। आज जो आप दे रहे हो तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए, 11 lakh crores of rupees of loans taken by our big industrialists have been waived off. Instead of doing that, if that money was collected and that was invested by the government in building our infrastructure, build our roads, build our irrigation channels, build our wells in villages where there is no drinking water, if all these infrastructure facilities are to be conducted using that money with public investment, if you do that, crores of new jobs will be generated. And when all of you get your jobs, when the youth gets his jobs, start spending the salaries that it receives, that is when all your closed factories can revive. That is when the economy can revive. So the alternative is there. विकल्प सामने है,
और वो विकल्प है कि सरकारी निवेश बढ़ाओ, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और करोड़ों की तादाद में नई नौकरियों की सृष्टि करो और उसके आधार पर देश के अंदर आर्थिक जो विकास है वो विकास के लिए लोगों के हाथ में जब पैसा मिलेगा वो खर्च करने लगेंगे, ये बंद पड़े फैक्ट्रियां सब खुलेंगी और इस तरीके के आर्थिक विकास हो सकता है। ये रास्ता है सामने अपने, लेकिन ये सरकार नहीं करेगी क्योंकि सरकार की पूरी उद्देश्य है कि लूट मचाओ, अमीर को अमीर बनाओ और उसके आधार पर सत्ता के ऊपर कब्जा करके राज करो पैसे के आधार पर। और इसलिए आज एक पूंजीपति और एक सांप्रदायिक ताकतों के बीच में एक बहुत बड़ा गठबंधन बन चुका है। There is today a corporate communal nexus that has developed. Anybody who is fighting for their rights, anybody who wants, demanding their rights as a job, right to employment is yours. That right to employment, we have said extended it with our pressure to the rural areas in the Rega. In the urban areas when we want to extend it, that they are not, they won't accept it. But at the same time, when unemployment is at the highest, 1.5 crore, 1.5 crore people have been turned back from work under Rega in the last 6 months. So this is the cruel nature of this government and its policies. It is the corporate communal nexus. And they think by dividing the Indian people through communal polarization, सांप्रदायिकता की जहर और नफरत फैलाते फैलाते वो चाहेंगे कि देश के अंदर फूट के आधार पर वो अपना राज करें और जब तक देश का नौजवान इस खेल को खुलासा नहीं करेगा, इस पोल नहीं खोलेगा, तब तक वो उनकी साजिश चलते रहेगी। यानी एक तरफ से नफरत, हिंसा की राजनीति, नौजवानों को आपके लैंप पोस्ट पे बांधकर पुलिस वाले प्लेन क्लोथ में पीटते हैं गुजरात में, बुलडोजर की राजनीति चलाते हो हमारे अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उनके मकाने, उनके दुकानों को तोड़ने के लिए, और ये नफरत पैदा करके, ये फूट पैदा करके आप अपना राज करना चाहते हो हिंसा और खून खराबे के आधार पर। This is the policies of this government with the corporate communal nexus. One hand looting the country, the other hand destroying the unity and integrity of our country. So that is why today we will have to very clearly, you will have to take the pledge, a re-pledge, you have to reaffirm your resolve that you will save India for your own future and for the future of the rest of it. You will save India today so that in the future you can change India for the better. And that is the pledge that you will have to take today. And इसलिए हम कहते हैं, आजकल बड़े गर्व के साथ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अमृत काल आ गया। अमृत काल, वो कहते हैं कि अब जो है हम अमृत काल में पहुंचे। अब अमृत पैदा कैसे हुआ? समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन जब होता है तो उससे दो कलश पैदा होते हैं, एक कलश में अमृत था और दूसरे में विष है। ये हमारे पौराणिक परंपरा है, ये पौराणिक कहानियों का हिस्सा है। अब ये जो अमृत का कलश जब उभर के आया समुद्र मंथन से, सबसे पहले राक्षस लोगों ने वो अमृत के कलश को पकड़कर भर गया और देवता लोगों के पास सिर्फ वो विष का कलश था। अब बड़ी परेशानी देवताओं को कि किसी न किसी तिगड़म करके वो अमृत का कलश राक्षसों के हाथ से वापस लाना है, और इसके लिए उन्होंने तिगड़म किया। वो अलग बात है, वो कहानी है, पौराणिक कहानी, वो तिगड़म क्या है वो बाद में देख लीजिए। लेकिन सवाल क्या है, आज जब मोदी जी कहते हैं कि अमृत काल आ गया, वो समय आ गया जब राक्षसों के हाथ में अमृत है। उस अमृत को राक्षसों से हाथ से उठाकर जनता के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमें वापस लाना है, और ये काम करने के लिए देश का नौजवान और DYFI के बिना ये संभव नहीं है। आज अमृत काल अगर लाना है तो इनके हाथ से सत्ता को हटाना है और इनको सत्ता से दूर रखना है, वरना आज के दिन ना भारत का भविष्य होगा, ना भारत को बेहतर बनाने की संघर्ष में हम जीत पाएंगे, ना आज भारत को बचा पाएंगे आज के दिन। और इंसान को इंसान से लड़ाने वाली राजनीति को, इस राजनीति को जब तक हम हटाएंगे नहीं, तब तक इस देश की एकता अखंडता को बचा नहीं पाएंगे।
So therefore the long and short of it, comrades, today is that on your shoulders rests the future of India. You will have to decide how determined you are to save India today and on that basis to change India for the better tomorrow. And if that has to be done, the DYFI has to once again take the lead in mobilizing the youth all over the country, not only in the question of where is my job, of course that is important, but also in the question of saving my country, my India, and wanting to change that country into a better country in the coming days, for which alternatives are there, what I just explained to you. So इसलिए आइए हम लोग सब मिलकर आज आपको यही नारा देना होगा मोदी साहब को कि सबको शिक्षा सबको काम वरना हम करेंगे नींद हराम। सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। बोलिए आपको आपके अंदर वो दृढ़ता है कि उनकी नींद हराम करने की या नहीं है? तो जोर से बोलिए ना, यहां से पार्लियामेंट तक आवाज नहीं जा रहा आपका। तो मोदी सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा सबको काम। तो मेरी क्रांतिकारी अभिनंदन आप सबको, और इस लड़ाई को जारी रखिए और हम आपके कंधों पर उम्मीद रख रहे हैं कि देश बचेगा, इस देश को बदलेंगे आप एक बेहतर भारत में। ये भरोसा हमारे देश के नौजवानों पे है। तो आप सबको मेरी क्रांतिकारी सलाम और इंकलाब जिंदाबाद।